Yeah, good morning, everyone. I welcome you to this webinar with Vito. Thank you, everyone, for joining us today. We have a very, very interesting topic for you and a very, very important topic, which Dr. Aditya Punjabi, who is an MBBS and an MD in General Medicine, will be discussing with us. He will be sharing his valuable information, knowledge with us. And Dr. Punjabi has treated over 8,000 patients or people with diabetes and is helping them to live a better life. We're very happy that all of you could join us this morning. And I will give the stage to Dr. Punjabi to start his webinar on low sugar issues like the symptoms, the problems, and the treatments that are important for hypoglycemia or when a person is suffering from low sugar. So, Dr. Punjabi, welcome to the forum. Thank you so much for your time, and we can begin the webinar now. Good morning, everyone. I'm Dr. Aditya Punjabi, and I'm MBBS, MD Medicine, CCBDM, and my topic for today's discussion is hypoglycemia, its causes, symptoms, complications, and the ways to treat. So, the topic is to understand hypoglycemia and how to treat hypoglycemia, its symptoms, and the ways to encounter. Next slide. First of all, let us understand what is hypoglycemia. It is a medical condition that happens when the blood sugar levels fall below the normal range. For most people with diabetes, that is the blood sugar level of 70 mg per dl or lower. अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपकी शुगर आपके ग्लूकोमीटर पे 70 mg per dl या उससे कम आती है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर के सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं. Now let us know that what are the causes of hypoglycemia. It can happen for many reasons. For example, not eating enough carbohydrates, taking too much insulin, consuming too much alcohol, and engaging in rigorous physical activity and exercising. Now let us see who are the patients who are at risk of hypoglycemia. The patients with type 1 or type 2 diabetes, those are getting managed with insulin. People with comorbidities such as high blood pressure, poor muscle mass, the patients with coronary artery disease or previous history of any cerebrovascular accident, and irregular blood sugar levels. So, hypoglycemia is very frequent in patients with type 1 diabetes or type 2 diabetes that are getting managed with insulin. People with comorbidities such as high blood pressure, poor muscle mass, the patients with prior history of any coronary artery disease or cerebrovascular accident, and irregular blood sugar levels. Next slide. Now let us see what are the symptoms of hypoglycemia. Hypoglycemia या low blood sugar के लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? These are trembling, palpitations, sweating, anxiety, hunger, drowsiness, blurred vision, difficulty in speaking, headache, dizziness, nausea, tingling sensation in limbs, difficulty in concentrating, confusion and weakness. मतलब अगर आपको ये लक्षण आते हैं जैसे हाथ पांव कपना, धड़कन तेज होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना, भूख लगना, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना, बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, उल्टी की इच्छा होना या कमजोरी लगना, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के लक्षण हो सकते हैं. आपको इमीडिएटली अपने सिम्टम्स के आधार पे अपनी जांच करनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए. Now let us see what is the classification of hypoglycemia. मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के भिन्न-भिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं. These are mild hypoglycemia, moderate hypoglycemia, and severe hypoglycemia. In mild hypoglycemia, the measured plasma glucose is less than 70 mg per dl, but without typical symptoms. And these typical symptoms respond to self-treatment. मतलब mild hypoglycemia में आपकी ग्लूकोमीटर की शुगर की रीडिंग 70 mg per dl के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, परंतु आपको आपके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर से संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देगा और आप उतनी जो शुगर आपकी लेवल आ रही है ग्लूकोमीटर पे उसके आधार पे आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं. माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को अपने सिम्टम्स या लक्षणों की पहचान के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है, यानी कि वो अपने आप को खुद से ट्रीट कर सकता है. पर अगर पेशेंट को या अगर व्यक्ति को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उस वजह से उसको अपने परिवार वालों या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर या किसी नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता पड़ सकती है
और उसको भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षणों को जानना बहुत आवश्यक है और उस आधार पर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया की टाइमिंग जो है वो क्या हो सकती हैं। इट कैन ऑकर एनी टाइम, एट द डे टाइम एंड नाइट टाइम एज वेल। अगर पेशेंट को रात को शुगर कम होने के लक्षण आ रहे हैं तो उनमें से कुछ एक लक्षण बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमको जानना जरूरी है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर है, वो शुगर की गोलियां खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, उसको सुबह 3 या 4 बजे के आसपास अगर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, अगर वो आवाजें करता है या उसको खराब सपने आने लगते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा थकान या बेचैनी महसूस होती है या इमीडिएटली सोने से उठने के बाद उसको अपने बिस्तर पे बहुत ज्यादा स्वेट दिखाई देता है, तो ये नाइट टाइम हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण होते हैं। ऐसे में पेशेंट को इमीडिएटली अपने सिम्टम्स की पहचान करके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब हम ये पता करते हैं कि जो हाइपोग्लाइसेमिया के हैं उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया? द कॉजेज आर गोइंग टू लॉन्ग विदाउट कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स, not eating for an extended period of time, taking too much insulin than required, not eating enough carbohydrates to balance your insulin, taking your insulin at the wrong time, consuming too much alcohol, increased physical activity and exercise, high altitudes and humid weather। मतलब ये कि अगर आप अपना खाना या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए बहुत लंबे समय तक रहते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खाते या व्रत रखते हैं, या आपको आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने जितनी इंसुलिन लगाने की सलाह दी है आप उससे ज्यादा इंसुलिन लगा लेते हैं, या अपनी इंसुलिन के अनुरूप आप अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप गलत समय पे इंसुलिन ले लेते हैं, या इंसुलिन के साथ या दवाइयों के साथ बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिगरस फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर लेते हैं, या अगर आप घूमने के लिए किसी सुदूर इलाके या हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं या बहुत ज्यादा गर्मी या ह्यूमिड वेदर से एक्सपोज होते हैं, तो वहां आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस या लो ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया अवेयरनेस। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया अवेयरनेस? इट इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन डज नॉट फील द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस? It is caused by frequent low blood sugar levels that reprogram the brain's trigger to release stress hormones at low blood sugar levels। मतलब ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस के कारण और इसकी रीप्रोग्रामिंग के कारण वो लक्षण जो कि शुगर कम होने पर मरीज को दिखने लगते हैं, जो कि आमतौर पर डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, वे लक्षण मरीज को पता ही नहीं चल पाते और शुगर कम होने संबंधी कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं में पेशेंट लैंड अप कर जाता है। तो अब अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया बार बार हो रहा है या पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जागरूक नहीं है, या जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे में व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि वो अपने ग्लूकोमीटर से बराबर अपनी शुगर की जांच करें, खाली पेट दोपहर को खाने से पहले या रात को खाने से पहले जांच करें, और अपनी जो शुगर जांच करने की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दे, जिसको हम फ्रीक्वेंट एसएमबीजी बोलते हैं। एक नए तरह का डिवाइस जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं, वो मरीज या जो भी व्यक्ति है जो कि डायबिटीज से ग्रसित है वो यूज कर सकता है, जिसमें उसकी शुगर की 80 या 90 के आसपास दिन की रीडिंग्स आ जाती हैं और वो 14 या 15 दिन की जो आकलन है उसके आधार पे अपनी दवाइयों या इंसुलिन के डोज को एडजस्ट कर सकता है। अगर आपकी शुगर बार बार कम हो रही है तो ये चीज आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या डायबिटीज डाइट कोच को बता सकते हैं, तो उस आधार पर आपकी दवाइयों का डोज या इंसुलिन का डोज कम हो जाता है, जिसके कारण आपके हाइपोग्लाइसीमिया होने की या शुगर कम होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर या नगण्य हो जाते हैं। अब हम ये पता करते हैं या ये जानते हैं कि डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो किन किन कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाता है। पेशेंट को कोमा हो सकता है, शुगर कम होने के कारण पेशेंट को मिर्गी के दौरे या झटके जैसे हम सीजर्स बोलते हैं वो आ सकते हैं। पेशेंट अपना होश या आपा खो बैठता है जिसे हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। पेशेंट को लकवा या पक्षाघात भी हो सकता है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट से ग्रसित या हार्ट से बीमारी से संबंधित पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने की संभावना या धड़कन तेज हो जाने की संभावना, जिसे हम एरिथमिया भी कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि डायबिटीज के मरीज
या डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति रात को दवाई का डोज लेके कम खाना खाते हैं या इंसुलिन का डोज ज्यादा ले लेते हैं। वो सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं या वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं तो वे चक्कर खा के अपने कमरे में या वॉशरूम में गिर जाते हैं, जिसके कारण उनको फ्रैक्चर्स या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंट फॉल्स या फ्रैक्चर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को हो सकते हैं। शुगर कम होने के कारण अगर व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के कारण पेशेंट अपना आपा भी खो बैठता है और उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे व्यक्तियों में हमने ये भी देखा है कि अगर सही समय पर हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज ना हो तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, वेयर we can treat the patients with mild to moderate hypoglycemia with following the rule of 15. The rule of 15 indicates a method of consuming at least 15 grams of fast-acting carbohydrate followed by a 15 minutes wait. The step 1 is to consume 15 gram carbohydrate. The step 2 is to wait for 15 minutes and relax. Step 3 is to measure your blood sugar again after 15 minutes. And step 4 is, if the blood sugars are below or equal to 70 mg per dl, you should consume another 15 grams of carbohydrate and wait for 15 minutes before measuring your blood sugar again. यानी कि अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि आपकी अगर शुगर 70, 75 या 80 के आसपास है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने के लक्षण लग रहे हैं, तो आप रूल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले अगर आपको इस चीज के सिम्टम्स आ रहे हैं या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शुगर कम हो रही है, तो आप इमीडिएटली अपने फैमिली के किसी भी मेंबर, किसी भी परिवारजन या किसी भी दोस्त को इसके बारे में बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शुगर कम हो रही है, आप मेरी शुगर की जांच कर लीजिए। या अगर आप का कॉन्शियसनेस लेवल अच्छा है तो आप खुद भी शुगर की जांच कर सकते हैं और उसके आधार पर आप इमीडिएटली 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। इनमें कुछ एक चीज आती हैं, जैसे शुगर क्यूब्स हो गई। आपके घर में अगर शुगर या ग्लूकोज पाउडर रखा हुआ है तो उसका 15 ग्राम आप पानी में घोल के पी सकते हैं। आप 1 या 2 चम्मच हनी ले सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें जो कि आप अपने घर में रखे हुए हैं, जैसे ग्लूकोज टैबलेट्स हो गए या ग्लूकोज जेल्स हो गए, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। और उसको लेने के बाद आपको 15 मिनट वेट करना है और रिलैक्स करना है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या अपने आप को ओवर एक्सर्ट करेंगे तो उस कारण भी आपकी शुगर कम हो सकती है। इसीलिए आपको उस पीरियड में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आपको 15 मिनट वेट करना है, जिससे कि आपने जो भी चीज कंज्यूम की है उसका असर धीरे धीरे आपकी बॉडी पे पड़े। उसके बाद आपको स्टेप 3 फॉलो करना है, जहां पे आपको 15 मिनट बाद दोबारा अपनी शुगर की जांच करनी है। और स्टेप 4 ये है कि अगर आपकी शुगर अभी भी 70 या 75 के आसपास है या 70 mg पर DL से नीचे है, तो आपको इमीडिएटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो कि फास्ट एक्टिंग है उसको दोबारा कंज्यूम करना है। और ये साइकिल आपको दोबारा फॉलो करनी है जब तक आपकी शुगर्स नॉर्मल नहीं आ जाती या 80 या 90 के आसपास नहीं आ जाती। ये एक टिपिकल साइकिल है जिसको आप बार बार फॉलो कर सकते हैं जब तक आपकी शुगर नॉर्मल नहीं हो जाती। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी शुगर बार बार लो हो जा रही है और आपने ये स्टेप फॉलो करके अपनी जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको रिवर्स कर लिया है, तो इसके इमीडिएटली आधे से 1 घंटे बाद आप अपना नॉर्मल मील या आप कोई प्रोटीन स्नैक जरूर ले सकते हैं, जिससे कि दोबारा शुगर कम होने के जो संकेत हैं या जिसको हम रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया है उससे हम बच सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन अ कॉन्शियस पर्सन in diabetes should be treated by oral injection of 20 grams carbohydrate instead of 15 grams carbohydrate, preferably as glucose tablets and equivalent. And the blood sugar should be retested in 15 minutes and retreated with another 15 grams of glucose if the blood sugar levels are below 70 mg per dl. मतलब हम जो साइकिल माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया के लिए फॉलो कर रहे थे या रूल ऑफ 15 माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया के लिए फॉलो करते हैं, उसी साइकिल को या उसी रूल को हम सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते पेशेंट कॉन्शियस हो या पेशेंट को अपनी स्थिति के बारे में पता हो। अब हम ये जानते हैं कि जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं या डायबिटीज से ग्रसित हैं और जो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो वो पेशेंट्स या वो व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स को किस प्रकार से नलिफाई या कम कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। Hypoglycemia may occur when the individual exercises without taking any snacks or exercises much later than or after the usual meals. Exercising too late in the evening should be prevented, as exercising in the evening may cause hypoglycemia while sleeping.
If an individual needs to exercise in the evening, excessive exercises must be avoided and the blood sugar levels should be closely monitored before going to sleep. And the exercise time should be increased first, followed by exercise intensity once an individual has adapted to a greater exercise time. इसका मतलब ये है कि डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति अगर बिना स्नैक्स या मील्स का एक्सरसाइज करेगा तो उसकी शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति अगर लेट शाम को या रात को एक्सरसाइज करना पसंद करता है तो उसकी शुगर रात को नींद करते समय कम हो सकती है। इसीलिए अगर व्यक्ति शाम को एक्सरसाइज करना पसंद करता है या उसको लगता है कि शाम को एक्सरसाइज की जरूरत है तो उसे बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए और उसे सोने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। साथ साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर डायबिटीज से संबंधी व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज की टाइमिंग या इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी एक्सरसाइज का टाइमिंग बढ़ाना जरूरी है और उसके बाद उसको अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम ये जानते हैं कि हम हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया? द फर्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। द सेकंड इज frequent self monitoring of blood glucose, that is SMBG. The third is flexible and rational insulin regimens. The fourth is individualized glycemic goals. The fifth is professional guidance and support. The sixth point is we have to teach the patient caregiver about the symptoms of hypoglycemia and its possible treatment. And the final and the most important thing is the patient alert identification card and glucagon emergency kit or diabetes emergency kit. जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। हमें पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि उसके हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उनको किन दवाइयां या इंसुलिन के किस डोज पे उसकी शुगर कम हो सकती है और अगर वो घर पे है और अपनी शुगर चेक कर पाता है तो उसको उस शुगर की रीडिंग के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कि वो इस हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना को नगण्य कर सके। इसके लिए उसको बराबर SMBG करते रहना चाहिए, अपनी शुगर्स की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेके अपने इंसुलिन की डोज को और जो दवाइयों के डोज है उसको मॉडिफाई करना चाहिए जिससे कि उसके हाइपोग्लाइसेमिया के जो एपिसोड्स हों वो कम से कम हो। हर पेशेंट का जो ग्लाइसेमिक गोल है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोई यंग पेशेंट है तो उसका ग्लाइसेमिक गोल अलग है, कोई व्यक्ति जो कि 60 या 70 साल का व्यक्ति है उसका ग्लाइसेमिक गोल अलग है, कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज है और लकवे से संबंधी है या उसकी एज बहुत ज्यादा है उसका ग्लाइसेमिक गोल्स या जो HbA1c का गोल है वो अलग होता है। तो अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछताछ करके अपनी जो गोली है या अपनी जो इंसुलिन का डोज है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। बराबर अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ गोल से जो हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो डॉक्टर हैं और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और जो डायबिटीज कोच हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पेशेंट को और उनके जो केयर गिवर्स हैं यानी कि उनके परिवार वाले हैं या उनके दोस्त हैं उनको उनकी दवाइयों के बारे में, उनके इंसुलिन के डोज के बारे में और जो हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण हैं उनके बारे में जानकारी दें जिससे कि कभी भी पेशेंट को जब हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण हों तो उस समय उस पेशेंट की या उस व्यक्ति की शुगर की जांच हो सके और इमीडिएटली उसका इलाज हो सके। ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे व्यक्तियों को ये जरूरी है कि वो अपना मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड जरूर पहने जिसमें उस पेशेंट के नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर, उसको किस प्रकार की डायबिटीज है यानी कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या लाडा है और वो इमरजेंसी में क्या क्या चीजें यूटिलाइज करता है जिससे कि वो अपनी हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्स कर लेता है या उसको ट्रीट कर लेता है, उन सब की डिटेल्स उस मेडिकल ID कार्ड में होनी चाहिए। व्यक्ति के साथ या जो भी व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है उसको हमेशा अपने साथ डायबिटीज इमरजेंसी किट रखनी चाहिए जिसमें कि एक ग्लूकोमीटर, वो चीजें जो कि फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यूज होती हैं जैसे कि शक्कर, ग्लूकोज का पाउडर, ग्लूकोज की टैबलेट्स या ग्लूकोज जेल, वो होनी चाहिए जो कि पेशेंट इमीडिएटली कंज्यूम करके अपनी हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड कर सके या उसको प्रिवेंट कर सके। So let us now discuss the key messages of this webinar. We must know the signs and symptoms of low blood glucose level. Not all symptoms will be present and some individuals may have other or no symptoms. Carry a source of fast acting carbohydrates with you all the times like glucose tablets, biscuits or a juice. The patient needs to wear diabetes identification tablet for most of the times. And we need to talk with diabetes healthcare team about the prevention and emergency treatment of severe blood glucose, low blood glucose levels associated with confusion, loss of consciousness or seizure. Thank you so much.